Good morning, student of class 5. Happy New Year to all of you. Now, welcome back to your EVS class. Today date is 3rd January 2022. So, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So, student, in the previous video we completed chapter number 19, that is towards independence. Okay, so in the last, after doing lot of struggle for the freedom of our country, finally our country got the freedom on 15th August 1947. Okay, now after completing all the book exercises and question answer of this chapter, student, now in today video we will start a new chapter, that is birth of a nation. Chapter number 20, birth of a nation. So this is the name of your new chapter, that is the birth of a nation. For example, every year you also celebrate your birthday. On this day, every year you also celebrate your birthday ना. It is true ना, आप सबका कोई ना कोई मंथ में जब भी बर्थडे आता है तो आप लोग भी अपने बर्थडे खूब सेलिब्रेट करते हो ना. इसी तरह इसे भी क्या बोला गया, बर्थ ऑफ ए नेशन. नाउ आवर कंट्री get the freedom from the British rule on 15th August 1947. That is the reason the name given is birth of a nation. It means now, it means that we are not ruled by any other country. This is the day when we got the freedom, and now we are not ruled by any other country. That is the reason every year we celebrate 15th August 1947 as a national festival, and 26th January, that is Republic Day, that is also our national festival. Okay, so student, now first of all, let's understand, student, what are the learning objectives of this chapter. Changes that took place, that took place in our country. In our country after independence. Second learning objective, form of government. In India. Next learning objective is our constitution. Okay, now see, student, these are the learning objective of the chapters. These are the things which we will study in this chapter. ठीक है, first point is given, changes that took place in our country after independence. Now
we get freedom on 15th August 1947. So after that, what changes took place in our country, that we will discuss. Next is form of government in India. So in which manner, how we look after the welfare of the people of India. ठीक है. सो हमारी कंट्री में कैसी गवर्नमेंट बनाई गई फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, that we will discuss. This thing already we discussed in class 4th also, if you remember this. There is central government, state government, self local government, that is in villages, gram panchayat. Okay, so these are the different form of government, and they work for the welfare of the people living in that area. So that things again we will discuss in detail in this second point, that is form of government in India. Okay, next is our constitution. Okay, next is the our constitution. Now see student, after getting freedom on 15th August 1947, our country was still facing lot of problem. What is the reason? India is not a small country. India is a very big country. Is it clear? So because at the time of you can say when the British people ruled our country, at that time our country is divided into more than 500 parts. ठीक है, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो पूरी इंडिया में 500 से भी ज्यादा पार्ट्स में कंट्री डिवाइडेड थी जब वो ब्रिटिश रूल कर रहे थे. सो जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ मच बिग इज आवर कंट्री. अगर प्रेजेंट टाइम का एक एज ए प्रेजेंट टाइम अगर आज हम कंपेयर करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में व्हाट इज द इन प्रेजेंट टाइम वी हैव 28 states and 8 union territories. Just think about it. उस समय लगभग 550 से भी ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक थी कंट्री, और उसे रूल कौन कर रहे थे? ब्रिटिश पीपल कर रहे थे. आज अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो पूरी इतनी बड़ी कंट्री सिर्फ 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट. Okay, that is the reason after getting the freedom again we are facing lot of problems. ठीक है, उस समय में कुछ स्टेट ऐसे भी थी जो इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहती थी. ठीक है, वो सोचते थे कि हम इंडिया से अलग ही पार्ट रहेंगे, जैसे हैदराबाद. ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हैदराबाद है इसे इंडिया में मिलाया था. ठीक है, सो एक प्रॉब्लम तो ये थी कि सम स्टेट अगेंस्ट ज्वाइनिंग द इंडियन नेशन. ठीक है, आफ्टर द फ्रीडम आल्सो वो इंडिया के पार्ट नहीं बनना चाह रहे थे, सेपरेट रहना चाह रहे थे. ठीक है, सो आल्सो देयर वाज ए चैलेंज बिफोर द लीडर टू डिसाइड ऑन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द ड्यूटीज एंड राइट ऑफ पीपल एंड द लॉज टू बी फॉलोड बाय द पीपल्स. नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द लीडर्स के उस समय आफ्टर फ्रीडम सबसे बड़ा चैलेंज जो लीडर्स के सामने था बेटा, वो ये था कि हाउ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट दे फॉर्म, किस तरह की गवर्नमेंट वो फॉर्म करें. क्योंकि किसी भी कंट्री को, किसी भी, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कंट्री जिससे आप ज़्यादा बेटर समझ लोगे. आई होप सबसे ज़्यादा आप लोग को आपकी सबसे बेस्ट गेम आप लोग की क्या होगी? मेरे ख्याल से क्रिकेट ही होगी, या तो 39 GTC के बच्चे हैं तो फुटबॉल में भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं. तो वेन एवर यू प्ले द गेम, तो आप क्या रफ गेम खेलते हो जैसा मन करता है? ठीक है, मान लो आप आउट हो गए लेकिन आपका भी और मन है बैटिंग करने का, आप ही खेलते रहते हो. क्या ऐसा होता है ग्राउंड में गेम?
तो आंसर इज नो। गेम की सक्सेस के लिए और फेयर गेम हो तो इसके लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं बेटा, रूल्स फॉलो करते हैं। कोई भी गेम हो, इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो, जैसे आप स्कूल में होते हो तो हम लोग कितनी चीज़ों को फॉलो करते हैं। रूल्स, इस समय आप कोविड के समय आ रहे हो, मास्क लगा के आते हो, ठीक है, सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके स्कूल के अंदर इंटर करते हो, सब रूल रेगुलेशन आप फॉलो करते हो व्हेन यू इंटर इन द स्कूल। और व्हेन यू प्ले एनी गेम एट दैट टाइम आल्सो यू फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द गेम। इन द सेम मैनर ये जो रूल्स और लॉ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब लीडर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया कि कैसी गवर्नमेंट फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए रूल्स और लॉ होने चाहिए जिसको सारे लोग फॉलो करें, सारे लोग माने, ठीक है। जैसे ओल्ड टाइम में क्या होते थे, किंग सब हुआ करते थे, राजा लोग होते थे, तो वो अपने रूल और वही उनके अंडर में जो भी उनके लोग होते थे, वो जो किंग बोलता था सारा वो लोग वही चीज़ें फॉलो करते थे। ओल्ड टाइम में ऐसा होता था, लेकिन अब वो ओल्ड टाइम गया, नाउ यहाँ तो कंट्री की बात आ गई। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज जो था लीडर्स के सामने कि हाउ दे फॉर्म द गवर्नमेंट, व्हाट शुड बी द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ पीपल लिविंग इन आवर कंट्री फॉर देयर कंट्री, ठीक है, उनकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पीपल, राइट्स ऑफ द पीपल पे यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी जो कंट्री है बेटा, people belonging to different religion, caste, they all are living together। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ एक रिलीजन के लोग हैं, नो। सो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट all are the citizen of our country, is it clear? So that is the reason अब which type of government they should form, what are the duties of the people living in the country and what are the rights of the people। अगर पीपल्स को ड्यूटी दे रही है कंट्री तो कंट्री पीपल्स को राइट भी तो देगी, अधिकार भी तो देगी। सो व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पीपल एंड व्हाट लॉ टू बी फॉलोड बाय द पीपल्स, ठीक है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए रूल्स और लॉ होने चाहिए जिसको उस कंट्री में रहने वाले सारे लोग, वेदर दे बिलोंग टू एनी रिलीजन कास्ट, दे ऑल फॉलो बिकॉज दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो नाउ अब क्वेश्चन अराइज हुआ, हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस दैट टुक प्लेस इन आवर कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्योंकि दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। अब नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो जैसे टीचर आप लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है, व्हाट द टीचर टीच, और जब एग्जाम होता है तो आप अपने बुक्स में से पढ़ते हो, कॉपीज में से पढ़ते हो, सारी चीजें उसमें से रिवाइज करते हो ना कि एग्जाम में ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो ए बुक in which all the rules and laws are in the written form, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक की ही तरह है जिसमें देश को चलाने के सारे रूल और लॉ लिखे गए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही थी। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस, नाउ द बिग चैलेंज amongst the leaders is that the formation of the constitution, in Hindi we say it as a संविधान, ओके। सो जैसे हम लोग बुक्स और कॉपी से पढ़ते हैं तो ये भी एक बुक है जिसमें सारी चीजें किस फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में, सारी चीजें किस फॉर्म में बेटा, रिटर्न फॉर्म में, ईच एंड एवरीथिंग,
गवर्नमेंट कैसी बनेगी, what is the role of the government for the people, that is also mentioned in it. What are the rights of the people who are living in our country, or those who are the citizen of the country, उनके क्या rights होंगे, all these things, their duties, their right, all these things are in the written form in this book. Okay, so now after freedom, what is the most important thing is that the leader decided, the leaders decided to form a constituent assembly. To prepare a draft of the constitution. तो अब देखो, after independent leader decided to form a constituent assembly to draft or to prepare a draft of the constitution. ठीक है, अब जो लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने एक संविधान सभा बनाई, ठीक है, जिसमें अब ये डिसाइड किया जाएगा कि कैसे रूल्स और लॉ बना के कैसे रूल्स और लॉज बनाए जाए और उन्हें फॉलो किया जाए, ठीक है। और ये जो इट इज प्रिस्क्राइब बाई, इसको जो प्रिस्क्राइब बनाया था आउटलाइन, जैसे आप घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए आप डायरेक्ट घर नहीं बना देते हो, घर बनाने के लिए पहले आप जमीन पे जो जितनी जमीन है उस हिसाब के से एक नक्शा बनाते हो, ठीक है, उसके बाद उस पर घर बनाते हो, ठीक है। इन द सेम मैनर अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सो तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, ठीक है। लीडर डिसाइडेड टू फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इन्होंने एक संविधान सभा बनाई, ठीक है, एंड इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाई, और ये काम किसने किया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब एक आउटलाइन बनाने का, ठीक है, कि किस तरह क्या क्या चीजें फॉलो की गई, क्या क्या चीजें हम लोग फॉलो करके कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, तो ऑल दैट इसको जो प्रिस्क्राइब किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, यस राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द country after the independence. Okay, now the second thing is that who was the head of the drafting committee. इसे स्टार्ट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस कमेटी को, लेकिन who was the head of this committee? So the head of the committee, हेड कह सकते हो या चेयरमैन, या तो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, सो तो हमने थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, देश में कैसी गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए, इसके लिए लीडर्स ने क्या बनाया, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाई,
और इसको किसने प्रिस्क्राइब किया? दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी? इस पूरी कमेटी के चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।